Okay, hello students. Today we will start with civics and we will be studying about diversity. I know this is something new for you and you have not yet read anything about this in your early classes. So I request you to please pay attention and listen carefully and try to understand this chapter because it will be helpful to understand second chapter also, that is also related to the diversity. Other name will also be added with the diversity, that is discrimination. So let me start this chapter with two examples. Fine. Here the example number one is it was the birthday of Apurva. ठीक है, अपूर्वा का बर्थडे है और उसके कुछ फ्रेंड्स पार्टी में आए हैं. तो अपूर्वा invited her friends to his house. फाइन. तो अपूर्व ने अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है और सभी फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं. फाइन. और वहाँ पर जो उनका फूड है दैट इज द मेन फीस्ट, दैट इडली और डोसा. अदर एग्जाम्पल लें तो नेक्स्ट डे किसका बर्थडे आया, अवंतिका का. शी ऑल्सो इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड एंड उसकी मदर ने बनाया चाउमीन, पिज्जा एंड केक. And room was also decorated with the colorful balloons and trimmers. लड़ियों से वो घर सजाया हुआ था. So they both belonging from different family. Not only they both, other friends also can say they all are belonging from the different family. तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आप जब सोसाइटी में रहते हो तो lots of culture, lots of languages, lots of religion you can see in surrounding your area. You must be have seen different dressing style of your friends, different food habits of your friends, different language of your friends. Fine. So we have lot of differences in our self. ठीक है, आप अपने अपने फैमिली मेंबर्स में ही ले लो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर फैमिली मेंबर, इन अमाउंट ऑफ फूड कह लो, ड्रेसिंग सेंस कह लो, आपके ओपिनियंस, आपका थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड ऐसे ही आप अगर कम्युनिटीज की बात कर लो, हर कम्युनिटी अपना एक डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट कल्चर लेके चलती है. ठीक है, दे आर हैविंग देयर डिफरेंट फूड स्टाइल, दे आर डिफरेंट वियरिंग स्टाइल. आपने देखा होगा, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं कि कुछ लोग कुर्ता पजामा डालते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता डालते हैं. कुछ की अगर लैंग्वेजेस की बात करो, सम यूज टू स्पीक इन हिंदी, सम यूज टू स्पीक इन बंगाली, सम यूज टू स्पीक इन उर्दू. सो दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, है ना. कुछ हिंदूज हैं, इस्लाम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं. So basically it's all about diversity, lots of different cultures we are having in our India. Still we are living in unity. So about all these we will study in this chapter. So let me tell you about the meaning of diversity. Number one line there is a written, diversity means the state of being diverse. We see different type of people in surroundings. That I earlier told you that diversity means state of being diverse. Lots of differences we can see in our surrounding area, you know, and it is a range of many people or things that are different from one another. आपके पेरेंट्स की सोच, आपकी सोच, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की सोच, it's totally different. It's matter that will study in this chapter. Fine. और हमारे अपनी खुद की कंट्री के भी बारे में बात करी जाए, so we have lot of festivals, different festivals, that is also will be cleared in this chapter. Fine. So come to unity and diversity. See, we have variety of festivals to celebrate. We have lots of sports, you know, languages, dresses, food habits. Fine. And languages also have different dialects. Different dialogues में कुछ languages को show किया जाता है. But basically we all are one. It's a great example. अगर मैं आपको आपकी ही क्लास का एक एग्जाम्पल दूं कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, है ना. कोई मुस्लिम होगा, कोई जैन होगा, कोई सिख होगा. सो वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर. राइट. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम इकट्ठे हैं, तो उसे हम कहेंगे यूनिटी इन
डाइवर्सिटी, वी ऑल आर शेयरिंग योर शेयरिंग आर फूड, है ना, आप लोग टिफिन अपने आपस में शेयर करते हो, है ना, और बहुत सारे ऑथर्स हैं जो बुक्स अपने आपस में शेयर करते हैं. यू पीपल ऑल्सो सपोज टू गो एनी अदर स्टेट फॉर फन. हम एज अ टूरिस्ट हम किसी भी स्टेट में जाते हैं और वहाँ के कल्चर को एंजॉय करते हैं, और वी नेवर सपोज टू टॉक समथिंग बैड अबाउट एनी रिलीजन. वी हैव टू respect them. It's our prime duty. Fine. So come to religions of India. I told you that we have a lot of different religions in our India. Some is Hindu, some is Buddhist, some is Parsi, some is Muslim, some is Sikhs, and some is Christian. So they all are belonging from different community, different religion. Fine. Now come to festivals of India. सी इंडिया इज नॉन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. आपको भी पता है कि हर पूरा साल आप कितने ही फेस्टिवल्स एंजॉय करते हो, है ना. पर्सन्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. हम बात करते हैं हिंदू की, मुस्लिम्स की, पंजाबीज की, और द पर्सन हु इज लिविंग इन तमिलनाडु, Assam and Kerala. Here are some examples of some festivals that people used to celebrate in their own religions. Fine. So come to this one. If we talk about festivals of Hindus, हमारे हिंदू हम लोग कौन कौन से फेस्टिवल्स बहुत जोर शोर से मनाते हैं? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी. सो दीज आर द फेस्टिवल वी आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन अ लार्ज स्केल. फाइन. अनदर एग्जांपल अगर हम लेके चले तो मुस्लिम्स हैं. मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल कौन सा है? ईद. ये आपको पता ही होगा. पंजाब का बैसाखी. Fine. Come to Tamil Nadu, Pongal, Assam, Bihu, Kerala, Onam. So these are some examples of festivals that Indians or other religions basically used to celebrate. Fine. So there are some other festivals जिनको they are categorized in national festival, जिनको हम national festival के like एज अ नेशनल फेस्टिवल हम उनको सेलिब्रेट करते हैं. तो ये बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल है आपके, जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटिंग ऑन 15th अगस्त, रिपब्लिक डे 26th जनवरी, महात्मा गांधी बर्थडे 2nd अक्टूबर. सो दीज आर इंक्लूडिंग इन अ नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, आपको बताया होगा कि इस टाइम पर गवर्नमेंट हॉलीडे होता है. नोबडी कैन डिनाई टू गिव दिस काइंड ऑफ holidays. Fine. Now come to economic activities. Here you'll think about how economic activities is affects our diversity. Like हम लोगों में diversity में economic activities का क्या काम है? Yes, obviously economic activity के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि we all are engaged in a different activities. अगर आप अपने दिल्ली की ही बात लेके चलो तो lots of occupations that people are engaged. Fine. और ये तो हम बात दिल्ली की कर रहे हैं. अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट एरिया, हम बात करें विलेजेस की, so people are engaged in a farming activity, they are engaged in a dairy products, fishing, forestry. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर एक्टिविटीज हो रही हैं, they all are including in primary activity. Fine. So let me explain again what I'm saying. See, economic activity. Come to economic activity. What I'm saying, most people in rural area are engaged in agriculture and related activity such as dairy product, fishing, forestry. They are primary activities. तो मैंने आपको बताया कि हम इंडिया में रहते हैं, हम डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, और डिफरेंट एरियाज में रहने की वजह से हमारी एक्टिविटीज भी डिफरेंट हो जाती हैं. फाइन. तो जो लोग गांव में रहते हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? या तो एग्रीकल्चर होगा, या डेयरी प्रोडक्ट होगा, या फिशिंग, या फॉरेस्ट्री. ठीक है, जो सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं हमारी? मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज में. दैट विल बी डेफिनेटली यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस ऑल्सो. That is, we are having 3 kind of activities are there, that is primary, secondary and tertiary. So it better to understand now in this class only. Fine. So it will be easier to understand in higher classes. Come to second one.
Second one is talking about secondary education, sorry, secondary activities. Here it is many people in urban areas. Urban माने तो urban means शहर. Fine. बहुत सारे लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, दे आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. मैन्युफैक्चर्ड गुड क्या होता है? गुड्स को बनाना, उनको प्रोड्यूस करना, गुड्स को बनाना फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट. मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ. दैट वुड से फर्नीचर बनाना, है ना, और वीट से बिस्किट्स बनाना, शुगर से शुगर केन बनाना. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि जब हम रॉ मटेरियल्स को, कच्चे माल को जब हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज किसके अंडर में आती हैं? आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज आती हैं. सो दीज एक्टिविटीज इन दिस वी basically convert raw materials into finished products. ठीक है. ये बात हुई फिनिश प्रोडक्ट्स की. कम टू टर्शरीज वन, दैट इज आपकी जो तीसरी एक्टिविटी है. ठीक है, वो है हमारी पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी टेंगिबल गुड्स. यहाँ पर कोई गुड्स प्रोडक्शन नहीं होती है. यहाँ पर आपको कुछ हाईली फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे हम बात करें अपने ट्रांसपोर्ट की, हम बात करें अपने कम्युनिकेशन की, हम बात करें बैंकिंग की, तो जो आपको शहरों में रहते हुए सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं? आपकी टर्शरी एक्टिविटीज में. Fine. You can give the example yourself. I think after this, that is transport, communication, and banking. These all examples are coming in tertiary activities. So all these activities are backbone of economy. हम इस बात को क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, हमारे पास प्राइमरी रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम आगे उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और अगर हमने वो कन्वर्ट नहीं किए हैं तो आगे हमारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है. ट्रेडिंग माने तो किसी भी चीज को खरीदना बेचना, है ना. और अगर हमें कुछ मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं है कोई भी प्रोडक्ट, तो हाउ वी विल यूज इट, हाउ वी विल कंज्यूम इट. एंड व्हाट इज द सीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो भी बिल्कुल जीरो हो जाता है. सो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी. तो हम वैसे तो ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं. हम किसी भी एक को बहुत ज़्यादा important नहीं कह सकते. All these are important for our economic life, and all these activities are interlinked with each other. And basically हम कह सकते हैं कि जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी है, that is totally based on primary and secondary activities. Fine. Now come to need for diversity. देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर. Is it necessary to encourage diversity? Why do we need diversity in our country? So do you think that diversity in our country is necessary? I think yes. Why so? तो सोचो, एज्यूम करो कि अगर हम बिल्कुल सिमिलर दिखें, है ना, हम बिल्कुल सिमिलर दिखें, हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल सेम हो. Suppose we wear same clothes, we'll be having same color, we react in a same manner. So is there a colorful living? No, I think not at all. तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, है ना. अगर कोई भी इंसान डिफरेंट वैरायटी रखता है, सो वी कैन शेयर दैट इंटेलिजेंसी. आपकी सोच अलग है, आपके फ्रेंड्स की थिंकिंग बिल्कुल अलग है. वी कैन चेंज आवर ओपिनियन, वी कैन एक्सचेंज आवर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस. फाइन. सो yes, there is a lot of importance of diversity. Fine. ये क्लियर हुआ होगा आपको. Let me continue with the factors that influence the diversity of the region. Here I have written in a short manner. इसको हम क्लियर करते हैं. Number one is historical, then geographical. अगर हम historical की बात करें, factors का मतलब होता है कारक. ठीक है, ये कुछ कारक हैं जो सारे regions की diversity को affect करती हैं. How? Number one is historical. Here I have written in a circle, that is comparison of new और old culture. हम इसके बेस पर कह सकते हैं कि आप अगर अर्ली मैन को देखेंगे, अर्ली डेज में देखोगे, तो पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट, हॉर्सेस, कैमल्स और इन शिप. ठीक है,
तो धीरे धीरे क्या हुआ, दे ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, न्यू प्लेसेस एंड दे सेटल्ड, है ना। और जब उन्हें पता चला कि यस अब हमें घर मिल गया है, तो दे स्टार्टेड टू यू नो स्टे देयर, दे स्टार्टेड सेटल्ड देयर, है ना। और वो जब नई जगह पर रहने लगे तो उनका थोड़ा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन उनका जो ओल्ड स्टाइल था दैट वाज आल्सो अफेक्टिंग देम, so there was a mixing, intermixing of cultures created something new and different. तो आप अपने घर में अगर एग्जांपल लो, इट्स अ सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली दैट आप अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स की अगर सोच को देखोगे दैट इज टोटली डिफर, है ना। आप अपने खुद के पेरेंट्स की सोच देखोगे दैट इज टोटली डिफर फ्रॉम यू। आपको लगता होगा कि हमें सब कुछ आता है, आपके पेरेंट्स को लगता होगा हमें सब कुछ आता है। सो वी ऑल आर अफेक्टिंग विद आर हिस्ट्री, ठीक है। तो जो भी पर्सन है उसकी हिस्ट्री कैसी रही होगी दैट इज टोटली इफेक्टेड, उसकी वजह से वो उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके कल्चर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फाइन। उसके बिहेवियर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, फाइन। नाउ कम टू जोग्राफिकल। जोग्राफिकल में हम 3 फैक्टर्स पढ़ते हैं, आपको मैं जब जोग्राफी चैप्टर कराऊंगी दैट विल बी क्लियर। दैट इज वी हैव फिजिकल फीचर्स, डेजर्ट, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। सो अगर हम बात करें इन एग्जाम्पल्स की, तो लिविंग इन अ डेजर्ट एरिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन प्लेन एरिया। तो डेजर्ट में ऑब्वियसली देयर इज अ लैक ऑफ वाटर वी आर हैविंग, सो दिस एरिया इज मैनी यू कैन से स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली को बात करें तो मतलब होता है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इफ विल टॉक अबाउट माउंटेन्स, माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट्स इन लोकेटेड इन नॉर्दर्न साइड, थोड़ा सा कूलिंग होता है, थोड़ा सा टेनेंस का प्रॉब्लम होता है, और यू नो टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, इट्स टोटली डिफरेंट। सो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ना कॉम्पैक्ट, नॉट नॉट कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा दूर दूर आपको घर देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत कम कम्युनिटी है जो सेटल्ड होती है। तो माउंटेन्स वी कैन टेक इट एज अ टूरिस्ट प्लेस एंड ऑल, सो वी आर नॉट सपोज टू सेटल देयर। हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर mountains can say, fine। Come to plains area, obviously we are living in a plain area, है ना, with a different culture। so हमारा प्लेन एरिया का अगर आप कल्चर कहोगे बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी रोड्स हैं बिल्कुल प्लेन रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, लॉट्स ऑफ ऑक्यूपेशन दैट पीपल्स आर एंगेज्ड इन, लॉट्स ऑफ डिफरेंस यू कैन से। और अगर आप माउंटेन्स की बात करो तो लोग वहाँ पे लाइक टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ होटल्स यू कैन सी देयर, यू कैन फाउंड देयर। और उनका जो लाइफस्टाइल होगा दैट विल आल्सो बी डिफर फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन प्लेन एरिया। एंड इफ यू विल कंपेयर द सेम थिंग विद द डेजर्ट एरिया दैट इज आल्सो टोटली डिफरेंट, फाइन। So geographical or historical factors both are affecting our diversity of the region, fine। Come to factors that promote unity in India. These are 3 factors I have written here for you. Number 1 is geographical unit. So India, in spite of its physical, let me clear about physical. Number 1, physical means earlier I told you that we are desert, mountains and plains. So जो इन नॉर्दर्न साइड में जो लोग रहते होंगे वेस्टर्न में रहते हैं, और जो मिडल डेकन्स में रहते हैं, जो साउथ साइड में रहते हैं, सबका डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। लॉट्स ऑफ वेराइटी, लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अगर आप डांस की बात करोगे, म्यूजिक की बात करोगे, आप उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की बात करो, आप उनके आर्ट की बात करो, और आपके फूड हैबिट्स की बात करो, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, फाइन। और अगर क्लाइमेट इज ऑल्सो लाइक, अब आपका क्लाइमेट है, आप नॉर्दर्न साइड के क्लाइमेट की बात करोगे तो टोटली डिफरेंट है ना, टेम्परेचर वहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज होता है। वेस्टर्न साइड में डेजर्ट एरिया, गर्मी ज़्यादा होती है। फिर आप साउथ साइड में आओगे तो वाटर बॉडीज वी आर हैविंग, और फिर आप मिडिल सेशन में आओगे तो डेक्कन प्लेट्यूज वी आर हैविंग। तो जब सारी जगहों पर साउथ साइड में आओगे
हर हर एरिया का, हर रीजन का क्लाइमेट डिफर करता है, और उसी की वजह से वहाँ के रिलीजन्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर ठंड होगी तो लोग वूल्स यूज करते होंगे, है ना। तो और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर कैमल्स एज अ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे इंडिया में ही कितना सारा वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है, फाइन, इन अ सिंगल geographical unit. Come to second point, that is India has a continuous history. How? तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है that is not a history of small kingdom, सिर्फ एक किंगडम पर ही डिपेंड नहीं करता, हमारी जो हिस्ट्री है होल कंट्री की बात करती है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली एक्सप्लेनिंग अबाउट स्मॉल किंगडम, इट्स टॉकिंग अबाउट होल कंट्री, एंड इट हैज पॉलिटिकल यूनिट्स। हाउ? दैट इज ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल यूनिटी की, तो जो बहुत सारे रूलर्स हैं, मैनी ऑफ आर रूलर्स लाइक अशोका, हम बात करें समुद्रगुप्ता की बात करें, ऑब्वियसली अबाउट दीज पर्सन्स यू विल स्टडी इन नेक्स्ट अदर चैप्टर इन हिस्ट्री। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, अशोका थे, समुद्रगुप्ता और अलाउद्दीन खिलजी थे, और जितने भी मुगल्स थे, उन्होंने ना हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और कुछ डेक्कन्स के पार्ट पर भी उन्होंने कंट्रोल किया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे ही इंडिया पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो उनसे यू नो फ्री होने के लिए, उनसे फ्रीडम पाने के लिए हमारा जो इंडिया है यूनिटी में आया था। सो इट हैज़ पॉलिटिकल यूनिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यूनिटी को प्रमोट करता है इंडिया में। फाइन, I think you better understood. Let me continue with the last topic of this chapter, that is I will explain definitely. Come to features signifying the unity of India. Number one is unity, national anthem. See, it's a national anthem. It's a symbol of a national unity. Everybody should know about it. And it was written by Rabindranath Tagore. ये आपको पता ही होगा that it's what it is written by Rabindranath Tagore, and it's a true expression can say of the unity of India. हम अगर हम नेशनल एंथम हम गाते हैं तो हमारे अंदर एक स्पिरिट आती है, हमारे अंदर एक देशभक्ति जगती है कि यस वी आर इंडियंस, थोड़ा सा हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अबाउट आवर नेशन। फाइन, come to national song, same feeling we are having about national song, that is Vande Mataram, and that is written by Bankim Chandra Chatterjee. We'll talk about national flag. Obviously we feel proud. आपको हमेशा प्राउड होता होगा अपने नेशनल फ्लैग को देखते हुए, है ना। तो we have tricolor in our flag. Number one is saffron, that is at the top, and it donates sacrifice. White color stands for truth and peace, and green color stands for prosperity. And what about that chakra, अशोक चक्र, ये आपको that stands for धर्म, है ना, आपके एथिकल वर्च्यू को शो करता है। क्लियर? कम टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा फोर्स में आया था 26 जन 1950। ये आपको आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको अगर माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेट मी क्लियर इट इन अ ब्रीफ वे, दैट इट्स अ बुक ऑफ लॉ। हमारी जो कंट्री रन करती है वो दैट ऑल following some rules and laws that all are mentioned in the constitution. Fine, so it's a basic document according to which our country is governed. Last part of this chapter, last point of this chapter is spirit of common brotherhood. Like जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं, दे प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हम बात करें हिंदूज की, हम बात करें मुस्लिम्स की, सिख्स की, है ना, क्रिश्चियंस की, एंड पीपल ऑल ऑफ ऑल कम्युनिटी, दे वर यूनाइटेड इन देयर डिसलाइक ऑफ देयर ब्रिटिश राज। बेसिकली इनको ब्रिटिश राज में रहना पसंद नहीं था, तो इन्होंने इकट्ठे ही इसके खिलाफ में आवाज उठाई थी। तो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये भी दिखाता है कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ यूनिटी,
इतनी सारी डिफरेंसेस, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर लिविंग इन अ unity, so that is a positive aspect of diversity. Again, I'm telling you this chapter, about this chapter, it will be uh, it is little bit different. So I request, please um, listen it carefully and pay attention. Fine, so that definitely it will be helpful to understand next chapter. So this chapter is clear, and I have completed this chapter in a single part. And I request you all, please write all these question answers that I have mentioned for you as a question answers. And note, I also have written here, please do your homework on loose pages. If you are having notebooks with you, then you can do in notebooks. Other thing, you are asking about 3 or 2 or 1 notebook, so please, if you have bunches of notebooks, make it separate. Otherwise, for now, make it one only. And if you are not having any single notebook, please do it on loose pages, so that it will be pasted in your copy later on. Fine. So these are short question answers related to this chapter. You can do it. Okay, here I'm explaining about um, 3 economic activities that I have written here. All 3 points of economic activity in our assignment. अगर आप ऊपर देखोगे तो 3 points mention है. आप वहाँ से इसका आंसर लिखिएगा without any cutting. Fine. And here I have written here so that you can answer it yourself. I think you will be able to understand. You will be able to write yourself without asking to anyone. Till then, please write this homework in your copies and notebooks, whatever pages, and it's only about this chapter. Hope you understood this chapter. Till then, keep safe yourself and your family, and all the best. Complete this chapter yourself. Fine. In next class, we'll share other question answers regarding this chapter. Till then, goodbye.